السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل قصہ بدسازوں کا، جو کہ ہے سیزن 2 سلفائٹ ناول کا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 15۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا، جبکہ ایمان ابھی تک غنودگی کے اثر میں تھی۔ اس کا بخار پہلے سے کم تھا، پر وہ اتنی گہری نیند میں تھی جیسے برسوں سوئی نہ ہو۔ وہ ایک دو بار کمرے میں آیا، پھر واپس چلا گیا۔ یقیناً ایمان حواس میں ہوتی تو کبھی نہ چاہتی ماسیل اسے یوں سوتے ہوئے دیکھے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، کبھی گلاس ونڈو سے، کبھی جھانک کر دروازے سے۔ وہ آج خوش تھا، بے انتہا خوش، پر ایمان کی بگڑتی طبیعت نے اسے پوری طرح خوش بھی نہ ہونے دیا۔ کاش تم اتنی مذہبی نہ ہوتی، ایمان، کہ کسی غیر کی محبت اپناتے وقت تمہیں بے ہوش ہونا پڑے۔ وہ اسے دیکھتے سوچ رہا تھا۔ وہ کب سے دروازے کے باہر چکرا رہا تھا۔ اس وقت اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ اسے سیدھا اپنے گھر لے آیا تھا۔ ڈاکٹر اس کے آنے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ کافی سٹریس میں تھی اور اوپر سے بخار، اور نہ جانے کون سا شوق تھا جسے وہ سہ نہ پائی تھی۔ مارتھا وہیں تھی۔ ماسیل کے کہنے پر وہ بار بار ایمان کو چھو کر اس کا بخار چیک کر رہی تھی، اور جب مارتھا نے اس کے تپتے جسم کو پرسکون ہوتے دیکھا تو ماسیل کو بتا دیا۔ اسے سکون کا سانس آیا تھا۔ اٹھ جاؤ ایمان، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ اب دروازہ کھولے بڑبڑا رہا تھا، پر وہ نہ اٹھی۔ پھر وہ گہرا سانس لیتا دروازہ بند کر کے واپس لاؤنج میں آ گیا تھا۔ مارتھا اس کے کہنے پر وہیں رکی ہوئی تھی۔ باہر بارش ابھی تک برس رہی تھی، جبکہ رات جیسے رک گئی تھی۔ وہ بے چین تھا۔ وہ اسے ہوش میں دیکھنا چاہتا تھا، اسے سننا چاہتا تھا، اپنی سنانا چاہتا تھا۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جواب سننا چاہتا تھا تاکہ آسانی سے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف دینے کے بعد معافی مانگ لے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ دانش کے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے جواب دیا، خدا بھی تو ہمیں جنت میں بھیج دیتا ہے جب ہم اپنی سزا بھگت لیتے ہیں، پھر ہم کیوں اسے قبول نہیں کر پاتے؟ وہ پرسکون انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میرا ایک سوال ہے۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا ایک لڑکا کھڑا ہوا۔ اسے مائک دیا گیا۔ کیوں نہیں؟ وہ متوجہ ہوا۔ آپ نے کہا، بلکہ سب کہتے ہیں، خدا جو ہے وہ انصاف کرتا ہے، اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے جنت یا جہنم میں بھیجتا ہے۔ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ جو بھی ذات ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے اپنی خدائی میں لوگوں کو جج کر کے انہیں جنت یا جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ اس کو یہ حق کس نے دیا؟ وہ بہت کنفیوز تھا، الجھا ہوا، جھنجھلایا ہوا۔ اس نے توجہ سے لڑکے کی بات سنی، پھر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ سب بولیں جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، میں سب سننا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے ہے۔ وہ خدا ہے، وہ کچھ کر کے خدا نہیں۔ اسے خدا ہونے کی پاور جہاں سے بھی ملی، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ بات مجھے غصہ دلاتی ہے کہ وہ خدا اپنی پاورز کے غرور میں ہم جیسے انسانوں کو بناتا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور پھر ہمارے انکار کرنے پر وہ ہمیں سزا دیتا ہے، ہم سے بدلے لیتا ہے۔ آخر کیوں؟ اسے کس نے حق دیا؟ مجھے جواب چاہیے۔ اس کی آواز شدت جذبات سے کانپ اٹھی تھی۔ وہ کافی تپا ہوا لگ رہا تھا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے جو الجھ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، بھٹکے ہوئے رہنا چاہتے ہیں، میں انہیں بھٹکائے رکھتا ہوں۔ الجھنوں کے بیابان میں میں انہیں الجھائے رکھتا ہوں۔ آپ سے کس نے کہا کہ اللہ اپنے بدلے لیتا ہے؟ اس نے الٹا سوال پوچھا۔ کہاں لکھا ہے ایسا؟ کس سے سنا آپ نے؟ تو پھر سزا کیوں دیتا ہے وہ ہمیں؟ لڑکا ابھی تک وہیں اٹکا ہوا تھا۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو دوسرے کو ایذا دیتا ہے۔ سزا اس کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ ہال میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ تو میں کیسے مان لوں کہ وہ انصاف کرے گا؟ وہ تو ملحد پر ایک مسلمان کو اہمیت دے گا نا۔ وہ تو اسی کا ساتھ دے گا۔ میں کیسے مان لوں وہ انصاف کرے گا؟ میں کیسے اس پر یقین کر لوں؟ ہم کسی پر یقین کیوں کرتے ہیں ینگ مین؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پوچھ رہا تھا۔ انداز بہت خاص تھا۔ وہ کون سا پیمانہ ہوتا ہے جس پر ہم یقین کر کے کہتے ہیں کہ فلاں انسان میں یہ خوبیاں ہوں گی تو ہم اسے منصف مانیں گے؟ اینک سے جھانکتی اس کی ذہین آنکھیں لڑکے پر جمی تھیں۔ لڑکا کشمکش کا شکار تھا۔ جب کوئی جھوٹ نہیں بولتا، سچا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اللہ نے تو کھول کر سب بتا دیا ہے، پھر اس سے سچا کون ہوگا؟ پر میں کیسے مان لوں کہ وہ میرے ساتھ انصاف کرے گا؟ وہ تو کسی کا بھی ساتھ دے سکتا ہے۔ اس نے سر جھکایا، اور پھر چند قدم چلتا اس کے بائیں جانے والی کتار کی طرف آیا جہاں وہ لڑکا کھڑا تھا۔ یو نو واٹ، قیامت کے دن اگر اللہ آپ کے سامنے نہ بھی ہوا تب بھی انصاف ہوگا، اس نے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ کون کرے گا؟ لڑکے کی بھویں سکڑی۔ یہ سب۔ اس نے اپنے ہاتھ جیبوں سے نکالے اور اٹھائے۔ ہمارا جسم، ہمارے اعضاء،
सब खुद बोलेंगे, ये तो खुदा के ताबे होंगे, उसके कहने पर कुछ भी करेंगे। लड़के का अंदाज तंजिया था। वो सुनकर हौले से मुस्कुराया। यंग मैन, कुछ देर पहले आप बाहर लॉन में स्मोकिंग कर रहे थे। क्या हॉल में बैठे ये सब लोग जानते हैं? वो सिर्फ आम वेप नहीं था, बल्कि उसमें ड्रग्स भी थी। उसके कहने की देर थी कि लड़का साकित रह गया। उसे लगा कोई धमाका हुआ। वो कैसे जान गया था? आज जब सेमिनार हॉल में आया, उसने इसी लड़के को बाहर लॉन में स्मोकिंग करते देखा, पर उसके आसपास वाली लड़कियां नहीं जानती थीं कि इस वेब में ड्रग्स भी थी। वो एक पल की नहीं वो एक पल की निगाह थी जिसमें हाथ ने उसे कष्ट लगाते देखा, और फिर उसके चेहरे पर उभरने वाला जरूर हाथ को सब समझा गया था। स्टूडेंट्स हैरानी से उसे देख रहे थे। खुलेआम ड्रग्स लेना अलाउ नहीं था, पर वो ले रहा था, जबकि कोई नहीं जानता था। यकीनन उसने अपने चश्मे में दूरबीन फिट कर रखी थी। यकीनन कोई नहीं जानता होगा। और क्या होगा जब आपकी ज़िंदगी के एक एक पल को किसी फिल्म की तरह आपके सामने चलाया जाएगा, और फिर आपके जो अमाल थे, वो जो आप करते थे, उससे बाकी लोग किस तरह इफ़ेक्ट हुए, ये सब सामने आ जाए। फिर आप मान लेंगे ना कि हाँ, अब इंसाफ हुआ है। उसका अंदाज ऐसा था कि हॉल में बैठे अल्लाह वालों के दिल खौफ से लरज़ उठे। इंसाफ ऐसे ही होगा। तमाम इंसान बराबर खड़े होंगे। एक ने दूसरे का कितना नुकसान किया वो सब दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। आप देख रहे होंगे, सब देख रहे होंगे। वहाँ पर अगर अल्लाह ना भी मौजूद हो तो इंसाफ फिर भी होगा। अल्लाह ने हमारे औज़ा को ऐसा ही डिज़ाइन किया है। हम भाग नहीं सकते। इंसाफ तो फिर बिल्कुल भी नहीं। इंसाफ से तो बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात कि अल्लाह इतना बेनियाज है, उसे गरूर है। आप तो बताएं, गरूर हम में कब आता है, हम आम इंसानों में? उसने हॉल की जानिब देखा। सब खामोश थे। तब एक हिजाब वाली लड़की ने हाथ उठाया। उसे माइक दिया गया। जब हम खुद को परफेक्ट मान लेते हैं कि मुझसे बेहतर तो ये काम कोई कर ही नहीं सकता, तब हम गरूर में मुब्तला हो जाते हैं। लड़की ने अपनी तरफ से कोशिश की थी। एग्जैक्टली, परफेक्शन। वो हौले से मुस्कुराया, यूं जैसे उसे खुदा की ये जंग लड़ने में बहुत लुत्फ आ रहा हो। कभी कायनात देखी है? बाकी सब छोड़ें, आप अपने आप को देखें। जो खुदा इतनी परफेक्ट कायनात बना सकता है, जो इतना परफेक्ट है, उसका बेनियाज होना तो बनता ही है ना। और रही बात कि खुदा को कोई खुदाई मिल गई है, जहाँ से भी मिली हम नहीं जानते, तो हम उसे खुदा क्यों माने? उसने सवालिया नज़रों से स्टूडेंट्स को देखा। अगर वो खुदा पहले खुदा ना होता, आप लोगों के मुताबिक अगर वो इंसान से खुदा बनता, पहले गलतियां करता, फिर मेहनत करके खुदा बन जाता, तो पता है हम फिर भी उसे झुठला देते, ये कहकर कि वो तो आम इंसान से खुदा बना है। मैं उसे खुदा क्यों मानूं जो पहले खुदा नहीं था? वो नरमी से मुस्काया। हम इंसान हैं। जब हमने इनकार करना होता है किसी चीज़ से, तो हम ऐसे ही बेतुके लॉजिक ढूंढ लेते हैं। हॉल में फिर से खामोशी छा गई। उसने कलाई में बंधी घड़ी देखी। वक्त कम था। वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। उसकी शख्सियत ने सबको बांध लिया था। वो जो एक मिनट बैठने को तैयार नहीं थे, वो अब दम साधे सुन रहे थे। मुझे अब जाना है। मेरे आप लोगों के साथ 3 सेशन हैं। कल 10 बजे मैं यहाँ होऊंगा। जो स्टूडेंट्स डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो 10 बजे यहाँ पहुँच जाएं। उसने अपना कोट उठाकर दाहिने बाजू पर डाल लिया। हॉल में एक शोर सा उठा, यूं जैसे कोई तिलिस्म टूटा। वो अपना पजल बॉक्स उठाता खारजी दरवाजे की जाने बढ़ा। उसके पीछे इंतजामिया तेजी से लपकी। ओह माय गॉड! लड़कियां जैसे होश में आई थीं। कौन था ये शख्स? आखिर कौन है ये हाद? पूरे हॉल में एक ही सवाल गूंज रहा था। अभी तो उसने शुरू किया था। उसे कहीं और भी जाना था, किसी ज़रूरी काम के लिए। इसलिए वो जल्दी चला गया। ईमान की जब आंख खुली तो उसे अपना सर भारी भारी महसूस हुआ। कई लम्हे वो यूं ही लेटी रही, गुमसुम सी। फिर उसने याद करने की कोशिश की। उसे यही लगा कि वो अपने बिस्तर में है। पर जब उसे याद आया कि आखिर हुआ क्या था, तो वो झटके से उठ बैठी, जैसे कोई ख्वाब हो। फिर जब उसने आसपास देखा तो खुद को अजनबी जगह पर ही पाया। नरम गरम सा बिस्तर, खुला बड़ा सारा कमरा। उसके सांस खुश्क हुए। वो तेजी से बिस्तर से बाहर निकली। दिल जोरों से धड़क रहा था। बेड के पास ही बड़े सोफे पर उसका कोट रखा हुआ था, और उसके शूज भी। साइड टेबल पर उसका फ़ोन पड़ा था। वो जल्दी से खिड़की की जाने बढ़ी। उसने पर्दा हटाया तो सामने का मंजर उसे जाना पहचाना लगा। सामने ही लॉन के उस पार इंस्टीट्यूट की इमारत थी। यानी वो ख्वाब नहीं देख रही थी, ये सब सच था। वो वापस बेड पर बैठ गई। अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। यानी उसने सच में मासील की मोहब्बत को अपना लिया था। उसने चेहरा हाथों में छुपाया और खुद कोसने लगी थी। वह क्यों जज्बाती हुई थी, उसे सब याद आ गया। उसे यहाँ लाने वाला मासील ही था। उसके कपड़े वही थे, जबकि ऊपर एक गर्म जैकेट थी जो मार्था ने उसे पहनाई थी।
वो सोच उसे कुछ हो रहा था। उसने अपने बिखरे बालों को समेटा और फिर वो बाथरूम की जानिब बढ़ी। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली। उसने जैकेट उतार कर वहीं रखी, अपना कोट उठाकर पहना और शूज़ पहनकर अपना फ़ोन उठाती कमरे से बाहर निकल आई थी। छोटी सी राहदारी थी और फिर लाउंज था। मासिल सोफे पर लेटा, उसकी नज़रें उसी जानिब थीं। जैसे ही उसने ईमान को आते देखा वो तेज़ी से उठा और सारी रात यहीं बैठा रहता। सो नहीं वो सारी रात यहीं बैठा रहा था, सो नहीं पाया था। तुम ठीक हो? उसके लहजे में बेचैनी वाज़ेह थी। मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। वो नज़रें नहीं मिला पा रही थी। अजीब सी तपिश ने उसे अपनी लपेट में ले रखा था। मैं छोड़ आऊँगा, आओ पहले नाश्ता करो, वो नरमी से कहने लगा। नहीं, मुझे जाना है। वो ज़िद्दी थी, ये मासील जानता था, तभी वहाँ मार्था आई थी। नाश्ता लगवा दूँ? उसने मासील से पूछा। मार्था को यहाँ देखकर ईमान को सुकून का सांस आया था। वो समझ गई थी कि मार्था यहाँ उसी की वजह से थी। ठीक है, चलते हैं, रिलैक्स हो जाओ। वो नहीं चाहता था कि ईमान की तबीयत फिर से ख़राब हो जाए। कुछ देर बाद मार्था उसकी दवा की खुराक के साथ आ गई थी। नाश्ता कर लो, फिर दवाई लेनी है, इसके बाद चलेंगे, मासील ने प्यार से कहा। उसकी नज़रें पल पर बदलती ईमान पर जमी थी। नहीं, मुझे बस अभी जाना है, वो जिद करती बिल्कुल किसी बच्चे की तरह लग रही थी। मासील ने गहरा सांस लिया और मेज़ पर पड़ी चाबी उठाकर ईमान को बाहर चलने का इशारा किया। वो अपने जिस्म में बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी। भूख तो उसे लगी थी, पर वो यहाँ से जाना चाहती थी। वो तसव्वुर नहीं कर पा रही थी कि वो किसी गैर इंसान के घर में थी। बाहर आकर वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई थी। मासील ने बैठते ही फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट कर दी। मार्था की नज़रें दोनों पर जमी थीं। उसे ईमान बुरी लगती थी, पर उसे मासील अजीज़ था, इसलिए वो खामोशी से उसे बर्दाश्त कर रही थी। गाड़ी में खामोशी छाई थी, जबकि मासील उलझा हुआ था। ईमान के रवैये ने ज़रा भी लचक नहीं दिखाई थी। ईमान, आई एम सॉरी। बिलाखिर उसने खामोशी को तोड़ा। ईमान खामोश बैठी रही, उसके वजूद में हरकत ना हुई। क्यों सज़ा दे रही हो मुझे? उसकी खामोशी बुरी लग रही थी। ईमान ने चेहरे का रुख मुड़ा। उसकी आंखों में बहुत सारे शिकवे थे, शिकायतें थीं। आपको तो खुश होना चाहिए ना? वो अपने अंदर के तूफान को दबाते बोली। मैं ऐसे खुश नहीं हो सकता। उसने गाड़ी रोक दी। फिर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर निकल गया। ईमान की नज़रों ने उसका ताक़ुब किया तो सामने ही बेकरी थी। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में सैंडविच थे और साथ में जूस। वो गाड़ी में बैठा और बैग ईमान की जानिब बढ़ा दिया था। वो सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। तुम्हारी वजह से मैं भी भूखा हूँ, कुछ खा लो। उसकी बात सुनकर ईमान नरम पड़ गई थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे हालात में क्या करते हैं। उसके अंदर बस खौफ था, अजीब सा खौफ। फिर उसने एक सैंडविच निकालकर मासील की जानिब बढ़ा दिया। तुम खाओ पहले। उसने टोका तो ईमान ने एक निवाला लिया। वो बैठी सुन रही थी। ईमान, फिर से खामोशी छाने लगी तो मासील ने उसे पुकारा। तुम्हें पता है मेरा ताल्लुक मुस्लिम घराने से है। मैं मैरिज टाइप वाला लड़का नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब करूँगा। तुम्हें किसी के सामने सर नहीं झुकाना होगा। वो अपनी तरफ से तसल्ली दे रहा था, जबकि ईमान की आंखें गोद में रखे अपने हाथों पर जमी थीं, जिनमें उसने सैंडविच थाम रखा था। उसका दिल भर आया। लोगों की तो उसे परवाह नहीं थी, अल्लाह के सामने सर झुकने का डर था। आखिर कैसे उसने अपने लिए एक मुनकिर को चुन लिया था? आखिर कैसे? अगर उसे पूछा जाता तो वो क्या जवाब देती? नबाला उसके गले में ही अटक गया। वो जिस अजियत से गुजर रही थी, मासील उसे कभी नहीं समझ सकता था। उसने तड़प कर नजर उठाई। सामने सड़क पर गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं। उसकी आंखें धुंधला गईं। ईमान, उसने फिर से पुकारा। ईमान ने रुख मोड़ा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मासील को अपना दिल कटता महसूस हुआ। क्या थी वो लड़की? क्यों थी वो ऐसी? मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मुझे संभलने के लिए वक्त चाहिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। अब मोहब्बत अपना ही ली थी तो वो भाग नहीं सकती थी। उसकी ये बात सुनकर मासील को सुकून का सांस आया था, जबकि ईमान का जहन कहीं दूर उलझा हुआ था। कैसे होगा मुमकिन ये सब? सलमा बेगम का चेहरा बार बार तसव्वुर के पर्दे पर लहरा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया मदाम, वो मुस्कुराया, जबकि ईमान ने रुख फेर लिया। मासील अब पुरसकून हो चुका था। वो जानता था ईमान कहीं नहीं जा सकती थी। वो जाने ही नहीं देता। वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था, पर उसने हार नहीं मानी थी। चारों जानिब अब्दुल अब्दुल की पुकार थी। वो जितना खुद को जख्मी किए हुए था, अपने सामने वाले को उससे 3 गुना जख्मी कर चुका था। वो जैसे अपने होश में नहीं था। 1 साल गुजर गया, शायद इससे भी ज़्यादा। वो ईमान से नहीं मिल पाया था। आज भी उसके सामने वो बेगी पलकों वाला चेहरा जाने कहाँ से उभर आता था। उसने सब छोड़कर अब बॉक्सिंग शुरू कर दी थी। जिस्मानी तौर पर वो पहले से ज़्यादा मजबूत बन चुका था, पर जाने क्यों वो ईमान को नहीं भूल पाया था। वो इसके आखिरी अल्फाज,
اس نے کتنی बुरी तरह ایمان کا دل توڑا تھا۔ جانے وہ کہاں تھی، کیسی تھی؟ اس نے کبھی جان سے بھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ اس دن کے بعد کبھی یونیورسٹی نہیں گیا۔ جان جب اس سے ملنے آتا تو وہ اکثر ایمان کا ذکر کرتا، پر وہ خاموش رہتا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، بالکل ویسے جیسے آرجے خانم کے لیے ہار گیا تھا، جیسے مون نے انجل کو چھپ چھپ کر فالو کیا تھا۔ وہ اپنی الگ دنیا میں تھا، پر اس دنیا میں بھی ایمانے کسی حقیقت سے کم نہیں تھی۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ اس نے کیسے ایمانے کا دل توڑا تھا؟ وہ معصوم لڑکی اسے اپنا دوست مان بیٹھی تھی، اور دوست ایسے نہیں کرتے۔ غصے کی ایک تیز لہر اٹھی اور اس نے پوری طاقت سے ایک زوردار گھونسا اپنے مخالف کو دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور دوبارہ نہیں اٹھ پایا۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر اونچا کر دیا گیا۔ جیت کا اعلان ہو چکا تھا، اس پر لگائی گئی شرطیں جیتی جا چکی تھیں۔ وہ کھڑا تھا، اس شور میں اسے وہ نظر آ رہی تھی، سب سے آخر میں کھڑی تھی، خاموش، سب سے الگ، بھیگی پلکیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتا وہاں سے بھاگا تھا۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا، دور، بہت دور، جہاں ایمانے کا خیال بھی اسے چھو نہیں پاتا۔ وہ زخمی تھا، پر رات کے اس پہر سڑک پر تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے ایمان اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ وہ اب اسے پکار رہی تھی، وہ غصہ تھی، وہ اسے منحوس کہہ رہی تھی، کبھی جن تو کبھی ڈریکولا۔ وہ اب تھک چکی تھی، اس کی آنکھیں بھر آئیں، وہ اب سڑک پر منہ پھیلا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بھاگنے کی رفتار کم کر دی۔ وہ ایک دو بار سامنے سے آنے والے لڑکوں سے ٹکرایا اور ایک بار گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ آرجے کو کیسے جانتا تھا، پر وہ اسے دور بھاگ آیا تھا۔ وہ اب رو دینے کو تھی۔ غصہ کرتی وہ نم آنکھیں لیے واپس پلٹ گئی تھی، اور وہ رک گیا۔ وہ جا چکی تھی، جبکہ عبدل سامنے ساحل سمندر پر تھا۔ مجھے پریشان کرنا بند کرو ایمانے۔ وہ جھکا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جمائے، زور سے چلایا۔ ٹھنڈی ہوا اسے ٹکرائی اور اس کے زخم اکھڑ گئے تھے۔ اسی لیے مجھے اچھی لڑکیاں پسند نہیں، وہ غصے سے چلایا تھا، اور پھر تھک کر وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ کیا وہ اتنی عزیز ہے تمہیں؟ نسوانی آواز پر اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ ہیزل لہراتے لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے بال ہوا کے باعث اڑتے ہوئے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ تم جانتی تھی، میں جانتی تھی تم یہیں آؤ گے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھی، اس کے سامنے۔ تم اس سے محبت کرتے ہو، مان کیوں نہیں لیتے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پھٹ پڑا۔ محبت کے علاوہ بھی کچھ رشتے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو بلا وجہ ہی عزیز ہو جاتے ہیں، ان کا دکھ ہمیں دکھ دیتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس کا بھروسہ توڑا، کائنات نے اس کا بھروسہ توڑا۔ اسے دوستی میں کیا ملا؟ صرف دھوکہ۔ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ ہیزل رات کے اس پہر عبدل کے چہرے پر جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ میرے لیے نہیں بنی، وہ جس کے لیے بنی ہے میں اسے بتا چکا ہوں۔ ہیزل الجھ گئی، وہ کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پائی۔ سمجھ پائی تو صرف یہ کہ عبدل ایمانے کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ رومیو جولیٹ۔ عبدل، یہاں ٹھنڈ ہے، تمہارے زخموں سے خون بہہ رہا ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ ہیزل نے اس کے قریب بیٹھتے اس کے چہرے کے زخموں کو چھونا چاہا۔ میرا کوئی گھر نہیں، وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے بولا۔ چہرے پر اذیت ہی اذیت رقصاں تھی۔ ہیزل کے لیے عبدل ایک معمہ تھا، ایک کہانی، ایک راز، جسے وہ آج تک جان نہیں پائی تھی۔ عبدل کے ہاتھ جھٹکنے کے باوجود ہیزل نے اس کے چہرے کو چھوا، اس کی نیلی پڑتی آنکھیں، پھٹا ہوا ہونٹ، وہ کتنا حسین تھا اور کیسے لاپرواہ رہتا تھا۔ تمہیں ترس نہیں آتا خود پر؟ وہ کسی موم کی طرح سے چھو رہی تھی۔ عبدل نے اذیت سے آنکھیں موند لیں۔ ترس بیچارے لوگوں پر کھایا جاتا ہے، میں بیچارہ نہیں ہوں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ کیوں دے رہی ہو خود کو سزا؟ اسے ڈھونڈ لو اور سچ بتا دو۔ ہیزل کی بات پر وہ مسکرا دیا، استہزائیہ ہنسی، خود کا مذاق اڑاتی۔ کون سا سچ بتاؤں اسے؟ جب اسے حقیقت کا پتہ چلے گا اس کی نفرت مجھ سے مزید بڑھ جائے گی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ہیزل کو دیکھا، اس کی آنکھیں درد سے بھری ہوئی تھیں۔ آخر کس سچ کی بات کر رہا تھا وہ؟ کیا چھپایا تھا اس نے ایمانے سے؟ کس بات کی سزا دے رہا تھا وہ خود کو؟ وہ ابھی تک جان نہیں پائی تھی۔ کام ہو گیا ہے، لڑکی نے ادھم کو قبول کر لیا ہے۔ اس نے اسے جانے سے روک لیا تھا۔ اس کی لیپ ٹاپ پر پھسلتی انگلیاں رک گئیں، آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی، چہرے پر فاتحانہ مسکان ابھری۔ یہ تو ہونا ہی تھا، اسے جیتنا پسند تھا اور وہ جیت گیا تھا۔ وہ کبھی نہ مانتی اگر ہم نے بروقت وہ اہم کام نہ کیا ہوتا۔ فون کے اسپیکر سے آواز ابھر رہی تھی، وہ کسی خاص کام کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتی ہے۔ عام انسان کمزور ہوتے ہیں، ان کی کمزوری ہاتھ لگ جائے تو پھر انہیں ٹریک کرنا مشکل نہیں ہوتا۔
वो लैपटॉप को बेड पर रखता बेड से नीचे उतर आया था। एयरबड उसके कान में लगा हुआ था जबकि उसका मोबाइल फ़ोन बेड पर पड़ा हुआ था। उसने पानी ग्लास में डालने की गर्ज से जग उठाया पर वो खाली था। वो जग उठाकर जूते पहनता कमरे से बाहर निकल आया। पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। कोई गार्ड तक नहीं था। वो ज़्यादा इंसानों में रहने का आदी नहीं था। वो अकेले रहना पसंद करता था। इसका हजूम से वास्ता पड़ा इसका हजूम से वास्ता पड़ता रहता था पर वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी तक किसी को नहीं आने देता था। वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे किचन तक आया। दूसरी जानिब से मज़ीद कुछ बताया जा रहा था जिसे वो गौर से सुन रहा था। जग पानी से भरने के बाद वो वापस कमरे में आ गया। उसे खेलने का शौक था, ख़ास तौर पर इंसानों से, क्योंकि वो उनकी कमज़ोरियाँ जानता था। लेकिन इस बार वो जिस खेल में जीतने पर खुश था वो नहीं जानता था ये उसकी जीत हमेशा के लिए उसकी हार बनने वाली थी। ईमान ने नई जॉब ज्वाइन करने के लिए 15 दिन का वक्त मांगा था। वो ये 15 दिन अपने प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती थी कि वो ये 15 दिन सिर्फ कमरे में रहकर काम करेगी, पर वो इस पर कायम न रह सकी जब मासील ने उसे फ़ोन करना शुरू कर दिया। जैसे ही मासील ने उसे हॉस्टल छोड़ा उसने पलटकर मासील को मैसेज तक नहीं किया। वो भूल जाना चाहती थी जो अभी हुआ था, पर बार बार मासील का सामने आना उसे याद रखने पर मजबूर कर देता कि वो अब मासील को अपना चुकी थी। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। वो पिछले 2 घंटों से अपना काम कर रही थी जब मासील का 7वीं बार मैसेज आया था। बिलाखिर उसे उठाना ही पड़ा। मासील की गुस्से भरी आवाज़ उभरी। उसने पहली बार अपनी नाराज़गी का इजहार किया था। कहाँ थी तुम? मुझे इग्नोर कर रही हो? प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। ईमान ने अपने तने असाब को ढीला करना चाहा। दूसरी जानिब खामोशी छा गई। मेरा दिल करता है हर उस चीज़ को आग लगा दूं जो तुम्हारे और मेरे दरमियान आती है। कुछ देर बाद वो बोला तो लहजा सर्द था। गुस्से की तपश ईमान को यहाँ तक महसूस हुई थी। ऐसी बातें मत किया करे अधम। उसके चारों जानिब बेबसी ही बेबसी थी। और तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश मत किया करो। वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया। मुझसे नहीं सहा जाता। वो भी बेबस था। फिर लहजा नरम पड़ गया। ईमान खामोश रही। खैर, मैंने तुम्हें एक काम के लिए फ़ोन किया था। न्यू एडमिशन शुरू हो गए हैं। मैं चाहता हूँ तुम आकर स्टूडेंट्स की लिस्ट बना लो। मैं नहीं आ सकती। वजह? वो चौंका। मुझे नई जॉब मिल गई है। मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ। और दूसरी जानिब मासील के वजूद में अजियत फैलने लगी। ईमान, क्या कहूँ अब तुम्हें? उसने मासील को बताया तक नहीं था। आप किसी और को रख लें जॉब पर। वो फिर से बोली। हरगिज़ नहीं। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हें जॉब नहीं करनी ना करो पर तुम्हें 1 घंटे के लिए आना होगा। लिस्ट तो तुम ही बनाओगी, वरना ये कोर्स ही नहीं होगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया था। खफा हो गया था वो, जबकि ईमान ने हैरानी से फ़ोन को देखा। ये अच्छी ज़बरदस्ती थी भाई। पागल। उसने फ़ोन देखते कहा और फिर उसे साइड पर रख दिया। लैपटॉप पर नज़रें जमाई पर अब कहाँ जहन काम में लगने वाला था। वो तिलमिला कर रह गई। वो नाम क्लास में था जब उसकी क्लास में एक नई लड़की आई थी। उधम को वो लड़की पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी। वो बहुत खूबसूरत थी, उसके साथ मॉडर्न भी। उसके नए नक्श बिल्कुल मशरकी नहीं थे। उधम को लगा वो यूरोप से आई थी, पर उसका नाम मशरकी था। उसका लहजा भी खालिस पाकिस्तानी नहीं था। उसकी रंगत शफाफ थी। ऊंची पोनी टेल किए वो दुबली पतली सी लड़की पहले ही दिन पूरे स्कूल पर छा गई थी। उधम को भी वो पसंद आ गई पर उसने ज़ाहिर नहीं किया। लड़की की चमकती आंखें उसकी जहानत की निशानी थी। उधम सबसे आखिर में बैठा था। स्कूल यूनिफॉर्म पहने अजीबो-गरीब सी कटिंग के साथ वो हमेशा ही खामोश रहता। अक्सर कहीं न कहीं स्मोकिंग करता और फिर ज़रूर किसी कैफियत में जाने किस दुनिया में खोया रहता। वो ड्रग्स लेता था और ये उसे अपने दोस्तों से आसानी से मिल जाती थी। उसके दोस्त कहाँ से लाते उसे इसमें दिलचस्पी नहीं थी। क्लास में हर लड़के ने उस नई लड़की से दोस्ती करने की कोशिश की पर उसने किसी लड़के को तो दूर किसी लड़की को भी मुंह लगाना ज़रूरी नहीं समझा था। वो उन दिनों के अंदर स्कूल में मशहूर हो गई। उसे डा, डांस का शौक था। हर नए फैशन का उसे सबसे पहले पता होता। लाइनर कैसे लगाना था, बाल कैसे रखने थे, इस पर उससे क्लासेस ली जा सकती थीं। उसके साथ साथ वो पढ़ाई में भी इतनी ही आगे थी। अगर पूरे स्कूल में कोई लड़का था जिसने उससे बात करने की कोशिश नहीं की तो वो उधम जबील था। वो अजीब था और अजीब तर बदतमीज़ भी। क्लास का टॉपर था। ये बात उस लड़की को खलने लगी थी। जब सारे लड़के उस पर ट्राई कर चुके तो वो क्यों नहीं आया। एक दिन सर्दियों के मौसम में वो प्लेग्राउंड में एक बेंच पर बैठा स्मोकिंग कर रहा था। अचानक उसे अच्छू लगा और सांस उखड़ गया। उसे इस्तेमा तो था ही, वो ज़्यादा धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपनी जेब में इन्हेलर ढूंढने के लिए हाथ बढ़ाया था, पर वो नहीं मिला। अब वो खांसते खांसते अपनी सारी जेबें टटोल रहा था। वो अकेला ही बैठा था।
जब उसे लगा कि वो सांस नहीं ले पाएगा, तब अचानक किसी ने उसके सामने अपना हाथ किया था। खूबसूरत हथेली पर उसका इन्हेलर रखा था। उसने झटके से उठाकर इन्हेल किया। ये वही लड़की थी जो अब सीने पर हाथ बांधे उसे देख रही थी। जब उसका सांस बहाल हुआ तो उसने लड़की का शुक्रिया अदा किया। तुम्हें ये कहाँ से मिला? उदम ने सवाल किया। तुम्हारी पॉकेट से निकलकर क्लासरूम में गिर गया था। मैंने उठा लिया। सोचा जब तुम्हें ज़रूरत होगी तब दूंगी। वो सही देख रही थी। वो मुस्कुरा दिया। तुम्हारे साथ बैठ सकती? उसने पूछा तो उधम ने हाँ में सर हिला दिया। वो उसके करीब बेंच पर बैठ गई। सामने ही कुछ फासले पर स्टूडेंट्स खेल रहे थे। तुम बाकियों पर तुम बाकियों से इतने अलग क्यों हो? मिलाकर उसने पूछ लिया। उसकी बात सुनकर उधम मुस्कुरा दिया। मैं अलग हूँ? उसने उल्टा सवाल किया। नहीं, तुम अजीब हो। उसकी शफाफ रंगत धूप में चमक रही थी। वो हंस दिया। अजीब कैसे हूँ? उसने उल्टा सवाल किया। तुमने अभी तक मुझे दोस्ती की ऑफर नहीं की, इसलिए। वो खो वो साफ खो थी और काफ़ी दिनों से इंतज़ार करके थक गई थी। शायद इसीलिए खुद आ गई। क्योंकि मुझे खुद पर इतना भरोसा है कि लड़कियां मेरी तरफ खुद ब खुद चली आती हैं। लड़की ने रुख मोड़कर उसे देखा। उसके रुख मोड़ने पर उसकी पोनीटेल ने झटका खाया था। खुद परस्त हो। उधम को समझ न आया कि लड़की ने तबसरा किया था यह सवाल। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। और जो इंसान सबका हो जाए मुझे वो चाहिए भी नहीं। लड़की हैरान थी। इस दुबले पतले से लड़के को जैसे अपनी ज़ात से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी। एनीवे, मैं तुमसे कुछ पूछने आई थी। क्या तुम मेरे रोमियो बनोगे? उधम का तो हैरत उधम को तो हैरत से झटका लगा। असल ज़िंदगी में नहीं पूछ रही। स्कूल के फंक्शन में रोमियो जूलियट प्ले हो रहा है, तो क्या तुम रोमियो बनना पसंद करोगे? उसने सवाल किया था। और जूलियट कौन है? वो हैरानी से उसे देख रहा था। गड़बड़ाकर उल्टा सवाल पूछ लिया। ऑफ कोर्स मैं। भला हेजल के अलावा कौन जूलियट बन सकता है? वो एक अदा से अपनी पोनीटेल हिलाती उठी और चल दी थी, बिना उसका जवाब सुने। मुझे जल्दी इन्फॉर्म कर देना, वरना। वो दूर जाती ऊंची आवाज़ में बोली थी, जबकि उदम हैरत से उस लड़की को जाते देख रहा था जिसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी। रात का जाने कौन सा पहर था। वो सोया हुआ था, फिर अचानक अजीब से एहसास से उठ बैठा। ऐसा हमेशा से होता आया था। वो कभी गहरी नींद में सो नहीं पाता था, एक पल के लिए भी नहीं। उसे उसकी छठी हिस्स उसे किसी खतरे से आगाह कर रही थी। उसके कान जैसे कहीं लगे हुए थे। फिर वो बेड से उतर आया, जूता पहना और दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो गया। वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। यकीनन घर में कोई था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने गहरा सांस लिया और फिर अपने जूते पहनकर चश्मा लगाया। बिना आहट के दरवाज़ा खोलता कमरे से बाहर निकल आया। उसने हल्की जर्द रोशनी वाले लैंप को बुझा दिया था। वो सीढ़ियों की जानिब आया और झांक कर देखा तो लाउंज में टॉर्च थामे दो नकाबपोश घूम रहे थे। यकीनन वो वहां चोरी के इरादे से आए थे। वो अब लाउंज में रखा कीमती सामान उठा रहे थे। उन्हें किसी ने खबर दी होगी कि ये घर खाली पड़ा है, तभी वो लोग वहां आए थे। या फिर किसी एक इंसान के होने से कौन डरता है, इसलिए आ गए। वो सीने पर बाजू जमाए उन्हें देखता रहा। अब इनमें से एक आदमी लाउंज में खुलने वाले गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, जो लॉक था। उसने टॉर्च थामी, जबकि दूसरा हैंडल पर झुका हुआ था। लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो तसल्ली से उन्हें देखता सीढ़ियां उतरने लगा। उसकी चाल या उसके चेहरे पर कहीं खौफ नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक। वो उन्हें ही देख रहा था। हेलो, उसने सीढ़ियां उतरते ऊंची आवाज़ में कहा था। वीरान घर में उसकी आवाज़ गूंज गई थी। वो दोनों नकाबपोश हड़बड़ा कर पलटे। एक ने जाने कहाँ से गन निकाल ली थी। वहीं रुक जाओ, नकाबपोश ने गन उस पर तानते कड़कदार आवाज़ में कहा था। नकाबपोश ने गन उस पर तानते कड़कदार आवाज़ में कहा था। वो बिना सुने सीढ़ियां उतरने लगा था। मैंने कहा रुक जाओ, वरना गोली चला दूंगा। वो गजबनाक हुआ था। अरे यार, लाइट तो ऑन कर लो, मुझे अंधेरे में साफ नजर नहीं आता। वो उनकी बात को हवा में उड़ाते नीचे उतर आया था। दोनों नकाबपोश उसकी जुर्रत पर हैरान थे। वो सीढ़ियां उतरकर दाएं जानिब लगे स्विच बोर्ड की जाने बढ़ा। वो इतना तो जान गया था कि नकाबपोश भी अनाड़ी थे। उसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट चला दी। वो दोनों लड़के अब भी गन उस पर ताने खड़े थे। हिलना मत, दूसरा नकाबपोश फुर्राया। इस कमरे में कुछ भी नहीं है, वो सुकून से कहता लाउंज में सोफे पर बैठ गया था। दोनों जाने दोनों नकाबपोशों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। एक नकाबपोश ने हाथ में पकड़ा एक भारी कीमती गुलदान उसे जोर से दे मारा। वो हिला नहीं था। गुलदान उसकी कमर पर लगा और नीचे गिर गया। वो टस से मस ना हुआ। सोफे के करीब पहुंचकर उसने पलटकर देखा। नकाबपोश ये मंजर देखकर साकित रह गए।
कोई और होता तो अभी तक नीचे गिरकर करा रहा होता, जबकि वो सुकून से खड़ा था। गुलदान नीचे गिरने के बाद जोरदार आवाज पूरे घर में गूंज गई थी। उसने जमीन पर पड़े गुलदान को देखा और फिर नकाबपोश को। मरे हुए इंसान को क्या मारोगे तुम लोग? उसने इतने अजीब अंदाज में कहा कि वो दोनों जो पहले घबराए थे अब मजीद डर गए। पर तुम लोग बताओ कि तुम लोगों के साथ क्या किया जाए? मारा जाए, पुलिस के हवाले किया जाए, या फिर? उसका अंदाज ऐसा था कि नकाबपोशों को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। गन उनके हाथ में थी, पर वो ट्रिगर नहीं दबा पा रहे थे। जाने उस शख्स में ऐसी कौन सी कशिश थी जिसने दोनों को बांध दिया था। वो चश्मा जमाए अब सोफे पर बैठ चुका था, जबकि एक नकाबपोश ने अपना थैला नीचे वापस रख दिया था जिसमें उन्होंने कीमती सामान भरा था। तुम लोगों को कोई शक है तो ट्रिगर दबाकर देख लो। अगर मैं ना मरा तो फिर तुम लोग नहीं बच पाओगे। लिहाजा तुम दोनों को मशवरा देता हूँ कि उल्टे पांव लौट जाओ और दोबारा कभी चोरी की तरफ मत आना। अजीब पागल इंसान था। गन पॉइंट पर होने के बावजूद उल्टा उन्हें ही मशवरा दे रहा था। वो सोफे पर बैठा गहरी नजरों से उन्हें देख रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। दोनों नकाबपोशों ने एक दूसरे की जानिब देखा। एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया। जिसके हाथ में गन थी उसने सामने सोफे पर बैठे लड़के का निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया। वो जस्ट लगता वो जस्ट लगातार साइड पर हुआ। बिना आवाज के चली गोली सामने दीवार में लगी तस्वीर पर लग गई थी। तस्वीर नीचे गिर गई। अगले ही पल वो फुर्ती से उनके सर पर पहुंच गया। गन नकाबपोश के हाथ से छूटकर गिर गई। उसने जोरदार हाथ उसकी गर्दन पर मारा। नकाबपोश कराह कर रह गया, जबकि दूसरा भागने लगा। उसने उसकी पुष्ट पर जोरदार लात रसीद की, फिर वो मुंह के बल गिरा। मुझे लगता है तुम लोगों को इज्जत रास नहीं। वो मार्शल आर्ट्स का माहिर था, शायद तभी इतनी आसानी से लड़ रहा था। इससे पहले कि वो पुलिस को इससे पहले मैं पुलिस बुलाऊं, यहाँ से गायब हो जाओ। उसके कहने की देर थी कि वो दोनों गिरते पड़ते वहां से बाहर की जाने भागे। जबकि उसने दीवार पर लगी तस्वीर को देखा। उस पर लगा कांच का फ्रेम टूट चुका था। कांच नीचे बिखर गया था। वो निहायत हसीन शख्स था, हशाम जबील। उसने तस्वीर को उठाया और उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। लाउंज की इस दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें लगी थीं। आरजे, मिकी, रूहान जबील, मुस्तकीम और सबसे हसीन हशाम जबील। तीनों की तस्वीरों से ये दीवार भरी हुई थी। ये घर भी तो इनका ही था, जहां वो चोरों की तरह रह रहा था। वो फॉर्म सामने रखे लैपटॉप में एक्सेल की शीट ओपन किए लिस्ट बना रही थी। मासिल बहुत खुश था। वो आ गई थी, उसे आना ही था। वो संजीदगी से काम कर रही थी। बाहर पूल के पास हल्की धूप में कुर्सियां और मेज रखी थी, जहां वो दोनों बैठे थे, जबकि मासिल हथेली पर थोड़ी जमाए उसे देख रहा था। वो संजीदगी से काम करती इतनी अच्छी लग रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। वो पहले से तंदुरुस्त थी, पर थोड़ा थकी हुई थी। उसे यूं घूरता पाकर ईमान ने नजरें उठाकर उसे देखा। वो मुस्कुरा दिया। क्या देख रहे हैं? उसने आईब्रो उठाते पूछा। तुम्हें, और सिर्फ तुम्हें। वो मुस्कुराया, फिर ईमान की घुरी पर सीधा होकर बैठ गया। वैसे थैंक यू आने के लिए, उसने खुशदिली से कहा, जबकि ईमान तेजी से काम खत्म करने के चक्कर में थी। वो मासील को क्या कहती? वो आजकल वैसे ही मुस्कुराता रहता था। मार्था ने उसका ये नया रूप देखा था। वो बहुत खुश रहने लग गया था, मानो जैसे उसे पूरी कायनात मिलने वाली हो। ईमान ने लिस्ट फाइनल करते उसे महफूज कर लिया और लैपटॉप मासिल की जानिब सरका दिया। ये हो गई आपकी लिस्ट रेडी। 65 स्टूडेंट्स हैं। वो सीधा होकर बैठ गया। उसने लैपटॉप बंद कर दिया। उसे देखना भी गवारा नहीं किया और फिर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। जॉब कहाँ शुरू की है? वो अब संजीदा था। है एक कंपनी। ईमान ने बताना ज़रूरी नहीं समझा। तुम्हें क्या ज़रूरत है जॉब करने की? मैं हूं ना। उसकी बात सुनकर ईमान ने गौर से उसे देखा। फिर वो मुस्कुरा दी। इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट। वो समझ ना पाया। आप हैं तो इसका मतलब ये कि मैं जॉब ना करूं? ईमान ने उल्टा सवाल किया। मेरा ये मतलब नहीं था। ईमान ने सफाई दी। आपका जो भी मतलब था मिस्टर अदम, मैं आपकी तरह अकेली नहीं हूँ। मेरी एक फैमिली भी है और मेरा कोई सरपरस्त भी नहीं जो मेरा खर्चा उठा सके। इसलिए मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। वो साफ गोई से बोली, जबकि मासी लम्हा भर को खामोश हुआ। वो उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर कुछ खोज रहा था, यूं जैसे सारे राज उसके खूबसूरत चेहरे पर नक्श हों। मैं खुद चाहता हूँ तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मैं बस वैसे ही कह रहा था कि मेरे होते हुए तुम्हें ज़रूरत नहीं। वो खामोश हो गया। मार्था चाय की ट्रे उठाई थी। आजकल मासील भी कॉफ़ी छोड़कर चाय पी रहा था और वजह ईमान थी, सिर्फ ईमान। ईमान की नज़रें अब पुल पर तैरती बतखों में जमी थी। वो चाय रखकर चली गई तो ईमान ने मासिल की जानिब देखा।
बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। वो मुस्कुराई और फिर चाय का मग उठा लिया, नज़रें फिर से फूल पर जमा दी। तुम्हें पता है आजकल मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मासील का अंदाज ऐसा था कि ईमान ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। वो जीन्स शर्ट में मलबूस था, बाल सलीके से सेट थे, वो हमेशा की तरह अच्छा लग रहा था। आजकल मतलब आपकी ख्वाहिशें बदलती रहती हैं। ईमान का अंदाज ऐसा था कि वो मुस्कुरा दिया। वो लफ्ज़ों को पकड़ना जानती थी, भाप उड़ाते कब से झांकती उसकी ज़हीन आंखें मासील पर जमी थी। अभी तो लगता है यही सबसे बड़ी और हमेशा रहेगी। वो फिर मुस्कुरा दिया। ईमान खामोश नज़रों से उसे देखने लगी। मैं जब पाकिस्तान में था तब मुझे एक प्रोस्टिट्यूट मिली, तवाइफ। उसने ईमान को देखा, जैसे पूछा हो कि वो तवाइफ को जानती है या नहीं। वो खामोश रही। इसका शौहर एक नशई था। उसने मोहब्बत की शादी की थी, पर उसका शौहर नशई और जुआरी निकला। वो कमाना नहीं चाहता था, वो कमा ही नहीं सकता था। और पता है ना, पैसों के बगैर गुजारा नहीं होता, मोहब्बत से पेट नहीं भरता। वो रुका। अब उसकी नज़रें चाय के मग पर जमी थीं। गर्म होने के बायस ईमान ने भी मग वापस मेज़ पर रख दिया। जब उसे कहीं काम ना मिला तो वो तवाइफ बन गई, अपना और अपने शौहर का पेट पालने लगी। उसका शौहर नशा करके सारा दिन पड़ा रहता। वो उसके लिए नशा भी लाती और उसे जुआ खेलने के पैसे भी देती। मैं हैरान हूँ। फिर वो रुका, जबकि ईमान अब पूरी तवज्जो से कहानी सुन रही थी। वो हैरान थी कि वो कैसी लड़की थी जो मोहब्बत में इस कदर अंधी हो चुकी थी। कौन औरत ऐसे करती है? एक बार मैंने उसे पूछा कि रिमशा, तुम अपने शौहर से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकती हो कि तुम उसे खुद नशा ला कर दो, उसे जुआ खेलने दो? तो उसने जवाब दिया कि मोहब्बत सब करवा देती है। और यकीन करो कि ईमान में सब और यकीन करो ईमान, मैं बहुत हैरान था कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। हैरान तो ईमान भी हुई थी, पर उसे अब इस लड़की पर अफसोस होने लगा था। मैंने उसे कहा कि आखिर तुम ही अपना जिस्म क्यों बेचती हो? ये काम तुम्हारा शौहर भी तो कर सकता है, फिर तुम ही क्यों? पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने नज़रें उठाकर ईमान को देखा। दोनों की नज़रें मिली। उसने कहा कि मैं ये गवारा नहीं कर सकती कि मेरे शौहर को कोई और छुए। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं खुद ये काम करती हूँ। और मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकती, इसलिए मैं उसे नशा भी ला देती हूँ। वो किसी दूसरी औरत की तरफ ना जाए, इसलिए मैं उसे जुआ खेलने के पैसे भी देती हूँ। वो बोलते बोलते रुका। ईमान की नज़रें उस पर ही जमी थी। क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी कर सकता है? मुझे इस मर्द की किस्मत पर रश्क आता था जिसकी बीवी वो रिमशा थी। उसने गहरा सांस लिया और चाय का मग लबों से लगा लिया। ये कहानी सुनाने का मकसद क्या है? ईमान के चेहरे पर उलझन थी। मैं चाहता हूँ कोई मुझसे ऐसी मोहब्बत करे, बेपनाह मोहब्बत। वो फौरन बोला, यानी आपसे मोहब्बत करने वाली को आपके लिए अगर तवाइफ बनना पड़े तो आपको कोई इशू नहीं? उसने तंज़िया लहजे में चोट की। तुम समझी नहीं हो ईमान। देखो, फ़र्ज़ करो कि मैं एक नशई हूँ और मुझे नशे की तलब हो रही है। मेरा नशा छुड़ाने के लिए मुझे मेरी माँ ने अस्पताल में दाखिल करवा दिया है और मेरी हालत ऐसी है कि अगर मैंने ज़रा सा भी नशा किया तो मैं मर सकता हूँ। तो तुम क्या करोगी? उसने ईमान से पूछा। जिसको आपसे मोहब्बत होगी वो सब यही चाहेंगे कि आप ठीक हो जाएं। मासील ने बेसाख्ता हंस दिया। फ़र्क देखा, यही फ़र्क है। मेरी माँ चाहेगी कि मेरी जान बच जाए। वो मुझे नशा करने नहीं देगी। वो सब लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं वो ऐसा नहीं चाहेंगे। ये उनकी मुझसे मोहब्बत है, पर एक मोहब्बत और होती है, अनकंडीशनल। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वैसी मोहब्बत करो कि बिस्तर मर्ग पर अगर मैं तुमसे ड्रग्स मांगूँ तो मेरी तकलीफ़, मेरी तड़प ना देख पाओ और मेरे लिए ड्रग्स ले आओ। क्या डिमांड की थी उसने? जाने ये कौन सी मोहब्बत थी? ईमान साकित रह गई। उसे अपने अंदर सनसनी सी दौड़ती महसूस हुई। वो धुआं धुआं सा चेहरा उसे देखती रही जिसकी मोहब्बत के असूल ही अलग थे। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे वैसी मोहब्बत करो। और इन लोगों का क्या जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं? आई डोंट केयर। उसने लापरवाही से जवाब दिया। ईमान के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। हद से ज़्यादा खुद गर्ज हैं आप। वो रुख मोड़ गई और सांस लेने की कोशिश की। गहरा सांस। जहन माजी में उलझने लगा। हर इंसान खुदगर्ज होता है। तुम भी तो हो। तुम भी तो किसी मुल्हित या किसी मुनकर से शादी नहीं करोगी क्योंकि वो तुम्हारे मयार पर पूरा नहीं उतरता। हर इंसान खुदगर्ज होता है ईमान। फ़र्क सिर्फ यह है कि मेरे जैसे इंसान साफ गोई से काम लेते हैं। वो कह तो सच ही रहा था, पर सच कड़वा था। जबकि वो खामोश रही। दिमाग पर जैसे हथौड़े बरस रहे थे। कहीं दूर सिर्फ टाइलों वाले सहन के घर में ऐसा ही शख्स था जिसने पूरे ख़ानदान का जीना हराम कर रखा था। अब्दुल्ला शहाब।
خود غرضیوں میں ایک خود غرض، خود پرستوں میں خود پرست۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے کسی گہری سوچ میں غرق دیکھ کر محاسیل نے اسے پکارا۔ وہ چونک گئی تھی، جیسے کسی خواب سے باہر نکلی ہو، برے خواب سے۔ چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ مجھے جانا ہے، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائے ویسے ہی چھوڑ دی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی نہیں۔ عبداللہ صاحب کی نفرت بھری پکار اس کی سماعت سے بار بار ٹکرا رہی تھی۔ ایمان، کیا ہوا؟ وہ بھی فوراً اٹھا۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے جانا ہے۔ وہ حال میں رہنے کی کوشش کر رہی تھی، پر عبداللہ صاحب اسے ماضی میں کھینچ رہا تھا۔ وہ شخص جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، اسے لگا وہ مزید یہاں بیٹھی تو مر جائے گی۔ ایمان، رکو تو! وہ اسے پکارتا رہ گیا، جبکہ ایمان اپنا بیگ سنبھالتی بھاگنے کے انداز میں اسے دور ہوتی گئی۔ محاسیل نے افسردگی سے اسے دیکھا، اسے دور جاتے